Namaskar. Today we'll take on class 12 geography, chapter number 6, water resources. So we'll take on very important points in it, whatever the points on this which chapter involves. First point is water resources in India. हमारे पास कितने water resources हैं, that we're going to discuss in it. What type of resources we have from where we get water, that is surface water resources. आपके दो टाइप के resources होते हैं, one is surface water and one is ground water. So we'll take on surface water resources in this. आपका टोटल सरफेस वाटर रिसोर्सेज कितने हैं, we'll take on how much amount we have for ground water resources and how much water we are utilizing from these two sources, whether it's surface sources or whether ground water, हम कितना यूटिलाइज करते हैं और हमारे को कितना डिमांड है फॉर इरिगेशन, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन point number 6. Seventh point is deterioration of water quality. Whatever water we are getting, that is in good shape or not, that is deteriorated, that will take on this and this. And what type of conservation systems we have to adopt, that we are going to discuss in this topic, water conservation and management. Then point number 9 says prevention of water pollution. हम लोग कितना pollution होने से पानी को बचा सकते हैं, that we are going to discuss. And what type of polluted water can be recycled and reuse of water can be there, that we are going to discuss in this. Then very important point, how to conserve the water, that is one project that is called watershed management, we are going to discuss in this. Then 12th is rainwater harvesting, because India is a land of where only we get rainfall only for 2-3 months, and we are going to discuss in rainwater harvesting. Then we have what type of water policy we have, that we are going to discuss in national water policy. Then last one is we have a case study, that is Ranagaon Siddhi, we are going to discuss one by one. So we'll start with the chapter, that is first is water resources in India. India accounts 2.45% of water area if we compare to the world. तो हमारे पास water resources बहुत कम है, जैसे मेंशन किया मैंने आपको 2.45 water area है, और वर्ल्ड का जो हमारे पास वाटर रिसोर्सेज है दैट इज 4%. और पॉपुलेशन हमारे पास देश में हमारे पास 16% ऑफ पॉपुलेशन एंड वाटर रिसोर्सेज वी हैव ओनली 4%. सो देयर इज अ बिग शॉर्टेज ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया. देयरफॉर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट हर बूंद को हमको पानी को बचाना है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. And all this water is not useful. Only 60% of the water which is there, that is only useful. So we have to take out water from that. And we are getting water from different sources. अगर हम precipitation से लेना है, जैसे rainfall से कितने पानी मिलता है, आपको snowfall से कितना पानी मिलता है, that we are going to discuss है. तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे आपका total resources हैं water के. तो फर्स्ट पॉइंट विल टेक ऑन दैट इज सरफेस वाटर रिसोर्सेज. तो आपको मेन हमारे सोर्सेज कहाँ से हैं जिससे हमें पानी मिलता है, दैट इज फर्स्ट वन इज रिवर वेयर वी गेट वाटर, देन वी गेट वाटर फ्रॉम लेक, then we get from pond, then we are getting from tank. So these are the main areas, major sources from where we get water. Then we have groundwater resources. आपको दो टाइप के sources मैंने आपको starting में बताया था. We have two sources from where we get water. One is surface water resources and we have groundwater resources. So mainly if you see groundwater resources, there are some states which are utilizing this groundwater resources too much. और कुछ स्टेट्स हैं जिसमें बहुत लो यूज होता है. जैसे आप अगर छत्तीसगढ़ का एग्जांपल लें, ग्राउंड वाटर पीपल आर नॉट यूजिंग बिकॉज मैक्सिमम कैनाल्स आर देयर, देयरफॉर द नेम हैज बीन गिवन छत्तीसगढ़, राइट. देन ओडिशा आल्सो, बिकॉज दिस एरिया कम्स अंडर नियर बे ऑफ बंगाल एंड दिस कम्स अंडर वेरी हैवी मानसून शावर्स. ओडिशा में भी आपका ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल बहुत कम होता है. एंड सेम विद केरला, फर्स्ट स्टेट टू रिसीव मानसून इज केरला, लास्ट स्टेट टू रिसीव मानसून अगेन इज केरला. तो देयरफॉर वी आर नॉट यूजिंग सो मच ग्राउंड वाटर इन इट. कुछ स्टेट्स इसको मॉडरेट रूप से यूज करती हैं, दे आर नॉट एक्टिवली यूजिंग इट. तो वन इज गुजरात विच इज यूजिंग दिस वाटर एज ए मॉडरेट, देन वी हैव यूपी, देन वी हैव बिहार, देन वी हैव त्रिपुरा. सो दिस आर सम स्टेट्स वेयर वी आर यूजिंग मॉडरेट टाइप ऑफ वाटर. तो अगर हम वाटर रिसोर्सेज ग्राउंड वाटर को देखेंगे तो हमारे पास कितना ग्राउंड वाटर बचा हुआ है, तो दैट इज 432 क्यूबिक किलोमीटर के आसपास है. डाटा कैन अल्टर, सो डोंट कंफ्यूज विद दिस. सो सम बुक्स दे मेंशन मोर और सम बुक्स दे कैन मेंशन लेस. सो मेनली वी आर गेटिंग ग्राउंड वाटर का जहाँ पे शेयर बहुत ज़्यादा है, दैट कम्स अंडर गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, क्योंकि ये दोनों नदियाँ हैं, इसमें पूरा साल पानी रहता है. एज अ रीजन यू फाइंड ग्राउंड वाटर इज मोर एंड लेस. सो सम स्टेट्स आर देयर वेयर वी आर यूटिलाइजिंग सो मच वाटर, स्पेशली अगर इसी बेल्ट में देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र में पानी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इस बेल्ट में होता है, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन स्टेज इन इट. सो दिस इज द जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन विच आई ट्राई टू गिव यू. नाउ विल टेक ऑन वाटर यूटिलाइजेशन. हम पानी का इस्तेमाल कितना कितना करते हैं, कैसे करते हैं. मैंने आपको बोला था हमारे पास दो मेन सोर्सेज हैं, वन इज सरफेस वाटर एंड वन इज ग्राउंड वाटर. सो एग्रीकल्चर टेक्स मोर शेयर ऑफ वाटर, दैट इज 89% of water is utilized in agriculture sector.
Then we have domestic sector, घरों के लिए पानी चाहिए तो 9% of water that is utilized at homes only. Then we have industries. इंडस्ट्रीज में हमारा 2% वाटर है जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं. अगर हम ग्राउंड वाटर की बात करेंगे तो मेनली ग्राउंड वाटर इज मेनली यूज फॉर एग्रीकल्चर इज 92%. तो हम ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा करते हैं 92%. डोमेस्टिक पर्पज के लिए ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल सिर्फ 3% होता है. इंडस्ट्रीज में हम लोग 5% का यूज़ करते हैं. तो वाई देर इज ए नीड फॉर इरीगेशन. व्हाट बेसिकली दिस वर्ड इरीगेशन स्टैंड्स फॉर. इरीगेशन का मतलब होता है अननेचुरल वे ऑफ गिविंग वाटर. तो आप लोगों का पूरा टाइम बरसात नहीं होती है इंडिया में, पानी के सोर्सेज बहुत कम है. तो वी फॉर इफ यू वांट टू कंटिन्यू फॉर एग्रीकल्चर देन वी हैव टू डिपेंड फॉर इरीगेशन. First reason is why we are so much depending on irrigation. First of all, there is a very uneven distribution of rainfall. कुछ एरियाज में तो बहुत बरसात होती है, कुछ एरिया में होती नहीं है. And we are getting only seasonal rainfall. Only months for rainfall is 2 to 3 months. Therefore, we are getting very less rainfall. And third factor is high temperature. जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो पानी की कमी होती है. तो दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग. व्हेन टेम्परेचर इज मोर evaporation will be there. So that may be the cause why people are blaming on that. Then for if you have to produce more, अगर आपको प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए तो भी आपको इरीगेशन का डिपेंडेंस ज़्यादा हो जाएगा. Then we have another important point, deterioration of water quality. हम पानी को कैसे डिटोरेट कर रहे हैं, ख़राब कैसे कर रहे हैं. अगर हम देखें पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा water consumption, that is increasing day by day. Reason is very clear. Population is more. Standard of living of people has been improved. People have cars, lot of vehicles and all. They are cleaning it. Lot of things has been improved. That's the reason we need more water for that. But there is a lot of pressure on groundwater then. और जब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है, जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, डेवलपमेंट वो नहीं है, बिकॉज वी आर डैमेजिंग एनवायरमेंट पे समवेयर. तो इन डेट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट पोल्यूटिंग ग्राउंड वाटर आल्सो. So if you have so many urban areas, so many industrial waste also merged in water. आप लोगों ने देखा होगा नदियों में बहुत सारा pollution, water polluted जो होता है वो जाकर मिल जाता है. So that's a problem which is there. Then we have so many cultural factors also there, which is also very very important. तो जिसके कारण आपका water quality में deterioration होता है. Religious feelings है हमारी कि हम लोग गंगा को बहुत प्योर मानते हैं हिंदूज में. डिप करना, this is very common thing. So that's the reason why we find so much pollution and quality of water has been deteriorated. Then if you see most polluted rivers of the world, तो आप लोगों को दो नदियों का नाम मिलेगा, दोनों ही इंडिया में है. वन इज गंगा एंड वन इज यमुना. तो अगर हमको पानी को डिटोरेट हो रहा है तो पर्पस हमारा क्या होना चाहिए, दैट वी हैव टू कंजर्व द वाटर. सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट विच आई एम टू डिस्कस, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट. तो हमको कुछ लॉज बनाने पड़ेंगे देश में, तब जाकर हम वाटर को कंजर्व कर पाएंगे. तो वी हैव सम रूल्स एंड रेगुलेशन बट वी आर स्ट्रिक्टली नॉट फॉलोइंग इट. देन वी शुड हैव सम टेक्नोलॉजी हाउ वी कैन रिसाइकिल द वाटर. दैट टाइप ऑफ थिंग्स हैज टू बी देयर. हाउ वी कैन प्रिवेंट अवर वाटर पोल्यूशन. हमको वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर आना पड़ेगा, वाटरशेड मैनेजमेंट्स करने पड़ेंगे. देन ओनली द थिंग्स कैन बी देयर. देन व्हाटएवर द वाटर वी आर यूजिंग, दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऑल, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. हमें उस पानी को भी बचाना पड़ेगा. हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल अपने पानी को करना पड़ेगा ताकि हम उसका रीयूज़ कर सकें. So therefore, to controlling this water pollution, we have another point, that is prevention of water pollution. तो हम लोगों ने prevention of water pollution भी देखा. तो we have two important boards. एक तो सेंटर में काम करते हैं जिसका नाम है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड वन इज स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. सो दैट ओनली मॉनिटर्स पोल्यूशन. अब नेक्स्ट पॉइंट इज रिसाइकिल एंड रीयूज ऑफ वाटर. तो अगर हम लोग लो क्वालिटी के वाटर को रिसाइकिल कर पाएँ, रीयूज कर पाएँ, तो दैट कैन बी यूटिलाइज इन अ बेटर वे. तो हमको पानी को डोमेस्टिक सेंटर यूज़ के लिए भी रखना पड़ेगा. हम लोगों को जो पानी हम लोग क्लीनिंग के, व्हीकल के लिए करते हैं, गार्डनिंग के लिए करते हैं, तो वो पानी हम लोग जो लो क्वालिटी का होता है दैट कैन बी यूटिलाइज दैट वे. तो हाउ वी विल स्टार्ट विद वाटर कंजर्वेशन, दैट इज वाटरशेड मैनेजमेंट. अब इसकी अगर इसको डिफाइन करने पर हम लोग आएंगे, व्हाट दिस वाटरशेड मैनेजमेंट स्टैंड्स फॉर. इसका मतलब होता है एफिशिएंट वे से मैनेज करना सरफेस वाटर को, ग्राउंड वाटर को, ताकि आपका पानी खराब ना हो. तो आपका प्रॉपर मैनेजमेंट होना और उसको कंजर्व करना, दैट इज कॉल्ड वाटरशेड मैनेजमेंट. राइट. इसमें हम लोग तीन चीज़ों पे टारगेट करते हैं. प्रिजर्व करते हैं पानी को, उसके बाद रिचार्ज करते हैं, जो हमारे पिट्स वगैरह जो ग्राउंड वाटर खत्म हो गया उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और रिचार्ज करने की कोशिश करते हैं ताकि बैलेंस बन सके हमारा, कितनी हमारी डिमांड है और कितनी हमारी सप्लाई है. सो नेचुरल अवेलेबिलिटी और यूटिलिटी में हम लोग एक तालमेल बनाने की कोशिश करते हैं. So we have some projects which are very famous in the world. Even the name of the project is called हरियाली. तो ऐसा एक watershed development project हमने start किया हुआ with the help of central government. So that is very very important project which has been started.
how we are conserving our water product. The next one is नीरू and मीरू। तो हम लोग एक और प्रोजेक्ट है जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया हुआ है और जिससे कि पानी को सेफ कैसे किया जा सकता है, दैट हैज़ बीन मेंशन है। Then there is another program which is called Average Pani Sansad, that is in Rajasthan. तो राजस्थान में तो आप लोगों को पता है we have so many methods which have been started. We have so many canals, lakes and all has been constructed unnaturally in Rajasthan because we have to save water for that. So we have some Johod type of schemes which has been there in Rajasthan. Then we have special tanks which are called tankas that has been utilized especially in Rajasthan. उसके बाद हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हमारे पानी को कंजर्व करने के पास हमारे पास कोई मैनेजमेंट नहीं है, तो वी हैव टू स्ट्रेस टू मच ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो जो पानी हमारे पास है उसको हमने सेव करना है। तो कैसे सेव करना है भाई, जैसे बरसात होगी तो उसको कैप्चर करना है और स्टोर करने की कोशिश करना है ताकि हमारा जो ग्राउंड वाटर में कमी आई है उसको हम पूरा कर सकें। तो वी हैव टू गो थ्रू विद अ सर्विस वेल आल्सो, हम लोगों को ऐसी वेल्स का भी इंतजाम करना पड़ेगा जहाँ पे पानी उस टाइम स्टोर हो सके। सो वी हैव टू रिचार्ज अवर वेल सो मच ताकि हमारा ग्राउंड लेवल वाटर इम्प्रूव हो सके। देन वी हैव नेशनल वाटर पॉलिसी। तो हम लोग को मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट तो बना रहे हैं लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा कंपल्शन जो किया गया है दैट इज डन ऑन बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो हम लोग पानी को सबको मिलता रहे और हम लोग ये भी कोशिश करते हैं नेशनल वाटर पॉलिसी में कि एक्सप्लोटेशन ऑफ वाटर शुड नॉट बी देयर एंड पीपल शुड बी अवेयर मोर एंड मोर एंड दे शुड कंजर्व ऑन दैट। सो दैट्स अ नेशनल वाटर पॉलिसी। देन वी हैव द लास्ट पॉइंट दैट इज केस स्टडी ऑफ रालेगांव सिद्धि। रालेगांव सिद्धि इज अ प्लेस इन महाराष्ट्र वेयर अन्ना हजारे हैज स्टार्टेड अ मूवमेंट और एक स्पेशल मॉडल विलेज को डेवलप किया उन्होंने वहाँ पर, क्योंकि दिस एरिया कम्स इन विदर्भा। विदर्भा इज अ लैंड वेयर वाटर शॉर्टेज इज वेरी वेरी कॉमन। तो हम लोगों को देखेगा कि एक मॉडल विलेज बनाया है उन्होंने, ऐसी क्रॉप्स को उधर लगाया है जो ड्राई एरियाज में भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी ग्रेट रोल मॉडल विच हैज़ बीन started in Ralegaon Siddhi. So this is a chapter which I thought think that you understand. Next chapter we'll see next time.